A very warm namaste to all of you. Before we start, I would request all of you to please keep your cameras on and audio off during the program. Today, we are here with our series Shashakta, which is an initiative by Divine Beam Charitable Foundation, commonly known as DBIL. Through our program Shashakta, we try to enrich women with skill and motivation. Today with us, we have Dr. Yukti Raj Srivastava as our speaker. She is an orthodontist and is a government dental surgeon in Prayagraj. During her life journey, she has achieved many milestones. To name some, best paper presentation in clinical and research work by Indian Orthodontic Society, ex-senior lecturer in Kothiwar Dental College, various publications in Indian and international journals, reviewer in Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. Today, she will be enlightening us on oral hygiene and dental care. Before we start, I will request the founder of DBIL, Major Meghna Rawat, to say a few words. Thank you so much, DJ, and thank you all for joining us today in our program, Shashakta program for women by women. I see few faces which are associated with us for years, and there are 2-3 names which I do see which are new in our session. So in our program Shashakta, along with the educative series, we also keep having skill-oriented sessions like drawing or poem meets. I request you all to visit our page Divine Beam Charitable Foundation on Facebook for all these updates and stay connected with us. Our today's session is very interesting as it is related to our daily routine. रोज सुबह हम सभी अपने डेली रूटीन में दांतों को तो साफ करते ही हैं। ये प्यारी सी मुस्कान जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका क्या राज है, आज यही हम जानेंगे डॉक्टर युक्ति राज से कि किस तरह से हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। For the same, I request Dr. Yukti Raj Srivastav to take us through the journey of oral hygiene and dental care. Dr. Yukti, please take on the session. Thank you very much, ma'am. I think I'm audible. Yes. Am I audible? Yes. Yes, we can. And thank you so much for this nice introduction. I'm very thankful for this opportunity which you have given me through this Divine Beam Charitable Trust. And I am very very thankful क्योंकि oral health एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पता सबको है कि हाँ होता है but you know तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, and फिर sometimes we actually ignore the initial signs and symptoms जिसमें हमें एक visit ले लेना चाहिए डेंटिस्ट से, and because of that हमारी प्रॉब्लम छोटी से बड़ी हो जाती है. तो to avoid it we should have a thorough knowledge कि thorough नहीं तो at least एक overall foundation मतलब राउंड ऑफ कुछ पता होना चाहिए कि हाँ मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, वरना हम लोग क्या करते हैं शुरू में इग्नोर कर देते हैं. लाइक हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है, बैड ब्रेथ की, तो हम मुझे लगता है ओके चलो ठीक है माउथ वॉश कर लेंगे ठीक हो जाएगा, बट समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू सिस्टमिक इलनेस, तो वो हमें पता होना चाहिए. तो आई होप आज का ये सेशन लोगों को हेल्प करे टू नो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें एड्रेस करनी होती हैं इनिशियल स्टेज पे, और कैसे हमें अपने ओरल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, बिकॉज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ ही आप अपना एक बहुत अच्छा एक अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द स्क्रीन, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस. ठीक है, नाउ माय पीपीटी इंक्लूड्स ओरल हाइजीन एंड डेंटल केयर मेथड्स. So as we just 1 second, I think mute हो गया है by mistake. हाँ मैम, I think it's okay. तो मोस्ट ऑफ अस थिंक कि हम अगर दिन में मॉर्निंग के टाइम 2 to 3 मिनट्स का अगर हम ब्रश कर लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर ओरल हेल्थ फॉर 24 आवर्स, व्हिच इज एक्चुअली नॉट द केस. तो हमें अपने माउथ को कब क्लीन करना है ये चीज इंक्लूड होंगी. मोर ओवर जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे ओरल माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इट्स लाइक अ हेल्दी बैलेंस जो आपका होता है कि एक जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है और जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है उनका एक्चुअली बैलेंस होता है. जब ये बिगड़ता है तब वो धीरे धीरे आपके लीड करता है टू केरीज या फिर बैड ब्रेथ. तो ये हमें देखना है कि बैलेंस बिगड़े ना.
तो देयर आर फ्यू साइंस जो अर्ली स्टेजेस के होते हैं, जो होता है प्लस हम सिर्फ ब्रश करते हैं, ब्रश के साथ साथ माउथ वॉश, फ्लॉसिंग, ये सब भी करना पड़ता है। फ्लॉसिंग स्टडीज में फाइंड किया गया है कि अगर हम फ्लॉस करते हैं अपने दांत वंस अ डे, तो आप 6.4 to 5 इयर्स तक आप अपना हेल्थ बढ़ा लेते हो नेचुरली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रश कर रहे हो, फ्लॉसिंग कर रहे हो, तो वैसे ही आप अपना हेल्थ, अपना एज, अपने टूथ का एज बढ़ा रहे हो। नाउ फ्लॉसिंग डिलेज द इफेक्ट ऑफ एजिंग। एजिंग के साथ क्या होता है, हमारे टूथ में गैप आ जाता है या हमारे जो बोन होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। तो अगर आप क्लीन करके रखोगे अपने दांतों के बीच के एरिया में जो क्लीन करते हैं हम थ्रेड से, उसे फ्लॉसिंग कहते हैं, अगर आप उससे करोगे तो आप ऑब्वियसली अपना एज बढ़ा रहे हो और एजिंग को डिले कर रहे हो। और अगर आप अपनी हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करते हो, लाइक अनहेल्दी हैबिट्स में कुछ लोग स्मोक करते हैं, टोबैको जो है, ऑब्वियसली फीमेल्स डोंट डू जनरली, बट फिर भी ये एक पार्ट है तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सब चीजें हमें एक हेल्दी हैबिट बनानी है। इनफैक्ट डाइट में भी हेल्दी हैबिट रखनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग विच वी ईट नाउअडेज इंक्लूड सॉफ्ट थिंग्स लाइक पिज्जा, चॉकलेट, तो वो सब स्टिकी होते हैं, वो दांतों में चिपक जाते हैं। पहले क्या होते थे, फाइब्रस ज्यादा होते थे, फाइब्रस फूड की इधर, तो फाइबर की वजह से वो सेल्फ क्लीनिंग होता था। बट आजकल क्या होता है, हम लोग पिज्जा चॉकलेट्स पे आ गए तो वो ऑलरेडी स्टिकी होता है, एंड मोर ओवर वी डोंट क्लीन आवर टीथ प्रॉपर्ली, तो वो बहुत हजार्डस हो जाता है इन लॉन्ग रन। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन टुडे। सो दिस इज आर जस्ट आपको ब्रीफ नॉलेज देने के लिए कि एक्चुअली तो होता कैसा है। ये एक्चुअली जो व्हाइट वाला पोर्शन आप ये आगे देख रहे हो, उसमें ये इनामल होता है जो कि काफी हार्ड होता है, ये हमें एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। केरीज एक्चुअली सबसे पहले यही लगता है, ठीक है, एंड देन इंट्रोड्यूस डेंटिन, जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस कर जाता है, एंड देन इट इंक्लूड्स द पिंक इज वन द पल्स चेम्बर, जिसमें हमारे नर्व, ब्लड वेसल्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो जब हमारा केरीज होता है, मोस्टली इनिशियल साइन एंड सिम्टम यही होता है कि आपको पिट पे ब्राउन ब्राउन डिस्कलरेशन दिखने लगता है, वो एक्चुअली हमारे पिट एंड फिशर केरीज होते हैं, ठीक, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो ये यहाँ से डेंटिन और पल्प को जब ये इंफेक्ट कर देता है, तब हमें पेन लगने लगता है। वाइल अगर ये इनामल और डेंटिन तक रहता है तो हमें सेंसिटिविटी की फीलिंग्स आती है। तो आपको जब देखना इनिशियल में कि आपको सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है, जनरली हेल्दी पर्सन को सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिनों से आपको सेंसिटिविटी हो रही है या बैड ब्रेथ आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट। नाउ दीज आर द, हमारे दांत में एक तरह के टूथ भी नहीं होते, इट्स लाइक इट इंक्लूड्स मोलर्स, इंसाइजर्स, कैनाइन, तो इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। मोलर्स क्योंकि पीछे के दांत होते हैं, चौड़े होते हैं, तो इनमें केरीज जो पिट एंड फिशर होते हैं थोड़े डीप होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि हमें सबसे पहले मोलर्स ही अफेक्ट करता है, अदरवाइज इंसाइजर्स, कैनाइन्स में इतना नहीं अफेक्ट आता है, बिकॉज इसमें पिट एंड फिशर कम होते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी टीथ जो मतलब दूध के दांत होते हैं और परमानेंट टूथ होते हैं, इनका इरप्शन सीक्वेंस भी अलग अलग होता है। जैसे हमारे मन में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चा है तो बच्चे के टूथ को कोई बात नहीं, कीड़ा लग गया कोई बात नहीं, परमानेंट टूथ आ ही जाएगा, बट एक्चुअली में प्राइमरी टूथ जो होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो मैं ये क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, बिकॉज वी एज अ फीमेल हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन ऑल्सो एट होम। तो आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दो, क्योंकि समटाइम जैसे ही एक दांत भी आपके बच्चे के मुंह में आता है, देन यू हैव टू स्टार्ट क्लीनिंग। उस समय ब्रश कराने की जरूरत नहीं है, बट विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ अगर आप उसको वाइप ऑफ कर दोगे, क्योंकि दूध लगा रह सकता है कुछ भी, तो वो एक तरीके से चिपका हुआ रह जाता है दांतों पे, तो उसकी वजह से कीड़ीज, बच्चों में जो कीड़ा लग जाता है उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है उसकी वजह से, ही और शी विल लूज द टीथ, उसकी वजह से उसकी स्पीच अफेक्ट हो सकती है, बोलने में, क्योंकि दांत का रोल होता है स्पीच में भी। दूसरा क्या हो सकता है, खाने पीने में भी उसको दिक्कत होगी, दर्द होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्राइमरी टूथ का होता है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है परमानेंट टूथ के इरप्शन के लिए। तो अगर वो पहले ही लूज कर लेगा तो या तो उसका परमानेंट टूथ लेट आएगा, और अगर आएगा तो आगे पीछे आएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल होता है एक प्राइमरी टूथ का, जो अगर इग्नोर हो जाता है तो बच्चे के दांत आगे पीछे आ सकते हैं, या डिले हो सकता है, लेट आते हैं। कई बार होते हैं बच्चों के टूथ 6-6 महीने, 1-1 साल डिले हो जाते हैं, पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं। एक्चुअली अगर वो प्राइमरी टूथ का ध्यान रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे ही नहीं आएगी। ना आवर ओरल कैविटी हैज गॉट फुल बॉडी कनेक्शन, क्योंकि जब हम अपना जैसे
कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्चुअली ट्रांसमिसेबल होते हैं। इट्स नॉट इट इज विद इन यू ना, जब आप अपने पार्टनर के साथ होता है कुछ पेरियोडोंटल डिजीज भी आप ट्रांसफर कर देते हो। तो ओरल हेल्थ अपना और अपने पार्टनर दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सिस्टमिक डिजीज हैव गॉट लिंक टू द ओरल हेल्थ। अगर आप ओरल हेल्थ का अपना ध्यान रखोगे तो कुछ चीजें होती है जो आप ऐसे ही अपने आप को उससे अलग कर लेते हो। लाइक सिस्टमिक डिजीजेस होते हैं कुछ, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होता है, जीआई डिजीज होते हैं पेट के, वो इससे लिंक्ड होते हैं, क्योंकि आप जैसा खाओगे पियोगे वही आपके पेट में जाएगा। दो हमारे पेट में एसिड्स होते हैं कि वो एसिड से बैक्टीरिया वायरसेस किल करें, बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एसिडोजेनिक होते हैं, वो एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं, and जब वो बॉडी में आ जाते हैं and then it will affect so many organs which are present in the body. Most commonly are the lungs. कई बार होते हैं लंग्स में चले जाते हैं एंड उसका कॉज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये टोबैको एंड गुटखा च्यूज जो होते हैं उनको जनरली अफेक्ट करता है। नाउ पीपल हु हैव गॉट पेरियोडोंटल डिजीज डबल द रिस्क ऑफ फीटल हार्ट अटैक। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको पेरियोडोंटल डिजीजेस होते हैं उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के भी चांसेस हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप डेंटल विजिट के लिए गए हो एक्सट्रैक्शन के लिए, मे बी विद फॉर योर दादा दादी घर में या फिर मम्मी पापा के एक्सट्रैक्शन के लिए, आपको डेंटिस्ट एक प्रोफाइलैक्टिक ड्रग देता है जिसको 24 घंटे पहले खिलाना होता है। वो हार्ट के जो बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है उसको रोकने के लिए ही होता है, क्योंकि जब आप अपने टूथ को एक्सट्रैक्ट करते हो वो ब्लड वेसल्स में बैक्टीरिया जाता है एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट। तो हार्ट पेशेंट्स में तो वैसे ही प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है एंड मोर ओवर द पीपल हु आर प्रोन फॉर दैट उसके लिए भी प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है। तो ये सारी चीज बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। बाय डायबिटीज विद डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी पेरियोडोंटल डिजीजेस अगर हैं तो उनका भी ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज है एंड पेरियोडोंटल डिजीजेस भी हैं तो आप समझ सकते हो जब वो पेशेंट एक्सट्रैक्शन करवाएगा तो उसका जो वायरसेस होंगे बैक्टीरिया होंगे वो अगेन इट विल गो टू द ब्लड वेसल्स, इट विल अफेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर ओरल हेल्थ। नाउ टूथ डिके एज आई सेड हैव गॉट 4 टाइप्स। पिट एंड फिशर जो मैंने उस समय डायग्राम में आपको समझाया था, दीज आर द पिट्स एंड फिशर जो मोस्टली पोस्टीरियर्स में होते हैं and these are called the smooth surface caries. स्मूथ सर्फेस केरीज ये होते हैं जो हमारा बक्कल सर्फेस होता है, लिंगुअल होता है, प्रॉक्सिमल होते हैं, ये स्मूथ सर्फेस केरीज है। नाउ सर्वाइकल कैरी जो कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो इस बच्चे के, ये जो गम्स और जो टूथ के बाउंड्रीज पे है वो सर्वाइकल कैरीज है। समटाइम क्या होता है बच्चा दूध पीता है और मैं उसी पे फोकस करवाना चाह रही थी कि जब मम्मा उसकी दांत साफ नहीं करती हैं तो ये यहीं पे यहाँ पे केरीज हो जाता है बच्चे को। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत इनिशियल स्टेज पे ध्यान रखने की जरूरत है। देन नर्सिंग बॉटल केरीज भी इसी का एक टाइप होता है। नर्सिंग बॉटल केरीज में क्या होता है आपके एंटीरियर 4-5 तो सब में केरीज लग जाती है, तो उसको एज अ होल एक नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम भी कहते हैं उसको एक्चुअली, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बेसिकली ड्यू टू मदर्स नेग्लिजेंस, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ टूथ डिके, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। ये मैं बहुत लेमैन टर्म में आपको अभी समझा रही हूँ, दांत में कीड़ा लग गया। एक्चुअली दांत में कीड़ा लगता नहीं है। ऑलरेडी हमारा ओरल कैविटी जो मैंने बताया है इट इज ऑक्यूपाइड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बट देयर इज अ हेल्दी बैलेंस जो कि उसको मेंटेन होता है तो हमें अफेक्ट नहीं करता है। बट व्हेन वी ईट शुगरी सब्सटेंसेस लाइक हम लोग अपने सॉफ्ट और स्टिकी सब्सटेंसेस ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है वो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया। जब वो प्रोलिफरेट करते हैं तो बैक्टीरिया जब वो फूड पे प्रोलिफरेट करता है तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड एक्चुअली डीमिनरलाइज करता है टूथ को, बिकॉज टूथ इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से टूथ खोखला होने लगता है। एज यू कैन सी हियर, जब ये इनामल में एक्चुअली शुरुआत में व्हाइट स्पॉट आता है क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होता है व्हाइट स्पॉट, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिख पाता है क्योंकि व्हाइट टूथ ऑलरेडी होता है, उस पर व्हाइट स्पॉट आ जाता है। तो वो जब डेंटिस्ट टूथ को ड्राई करता है बिकॉज वो सलाइवा से ऑलरेडी रहता है कोटेड, तो मोस्ट ऑफ द ये अननोटिस चला जाता है। तो जब डेंटिस्ट इसको एयर से देखता है तभी वो दिख पाता है, अदरवाइज ये अननोटिस जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कब इसको नोटिस कर पाते हो जब ये एक्चुअली में डिके हो जाता है।
क्योंकि ब्राउन हो जाता है, पिट हो जाता है या गड्ढा हो जाता है, तब आप नोटिस करते हो कि ओके मेरे दांत में गड्ढा है, कुछ खाना फंस रहा होगा या कुछ ऐसा, टंग बार बार जा रहा होगा, देन यू नोटिस इट। जब ये इनामल में होता है तब फिर भी ये लेस सीवियर फॉर्म है डीके का, लेकिन जैसे ये अंदर जैसे डीके होता जाता है लाइक डेंटिन में, पल्प में, तो ये और अफेक्ट कर देता है आपके टूथ को। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू सी अ डेंटिस्ट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब भी एक्चुअली ये पल्प पे जैसे ही जाएगा इट विल गो टू आरसीटी। मोस्ट ऑफ अस वुड बी नोइंग अबाउट दिस टर्म आरसीटी, रूट कनाल ट्रीटमेंट, तो वो करना पड़ता है। वो काफी एक तरीके से थोड़ा सा बर्डनफुल हो जाता है पेशेंट के लिए, 2-3 बार आना पड़ जाता है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रॉमेटिक थिंग। नाउ as I told, enamel is affected first and decay continues to dentin and pulp, which I have already discussed. Now forms of diseases of gums क्या क्या हो सकते हैं? जिंजिवाइटिस, आप देख सकते हो जब गम्स में इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लीडिंग होती है, समटाइम्स यू कंप्लेन कि हम जैसे ही ब्रश करते हैं खून निकलता है, ठीक है, तो वो जिंजिवाइटिस का इनिशियल फॉर्म होता है, ब्लीडिंग गम्स। फिर आपके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? समटाइम्स इट्स हार्मोनल, मेनली प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल गम्स सॉगी हो जाते हैं। जब वो सॉगी हो जाते हैं ना तो इट विल ब्लीड, तो at this particular point also you need to visit your dentist. Now periodontitis हम कब कहते हैं? जब जिंजिवाइटिस के बैक्टीरिया आपके बोन को अफेक्ट कर देते हैं, एल्वियोलर बोन कहते हैं, जो टूथ के अराउंड होते हैं, उसको जैसे ही अफेक्ट करता है तो जो आपका बोन का लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगता है, उसकी वजह से आपके जो बोन दांत होता है वो हिलने लग जाता है, तो पॉकेट की फॉर्मेशन हो जाता है, खाना बीच में फंसने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनिशियल साइन एंड सिम्टम है जो आपको नोटिस करना है। ये नहीं कि जब दांत हिलेगा तभी आपको डेंटिस्ट के पास जाना है कि आप इसको निकाल दीजिए। अगर आप जितना पहले आओगे आप अपना टूथ सेव कर लोगे, एंड दैट इज द रीजन मैंने ये थोड़ा सा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है, क्योंकि जब आप चीजें समझते हो तभी आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाते हो, अदरवाइज मैं ऐसे बोलती रहूंगी तो आप पता नहीं कितना याद कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाई सम स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड लाइक दैट। Now, what are the causes? As a lack of daily and complete oral hygiene, obviously most of us do once, ना cleaning सिर्फ एक ही बार करते हैं. Most of us are not using mouthwash. Most of us are not flossing our teeth properly. So these are the things which we have to take care. And flossing is for everyone. It is not कि आपने आपका डेंटिस्ट बोला है आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी करना है. Brushing, flossing, and sometimes अगर आप actually अगर well aligned tooth है तो brushing and flossing is enough. बट स्टिल किसी किसी के आगे पीछे दांत होते हैं, दांत में खाना फंसने का चांसेस ज्यादा होता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर माउथ वॉशेस आल्सो। ये एक आपका नॉर्मल डेली एक ओरल रूटीन हो जाना चाहिए। नाउ और क्या क्या हो सकते हैं पेरियोडोंटल के कॉजेज? ब्रोकन फीलिंग्स और टीथ, क्योंकि उन्हीं में खाना फंसेगा एंड देन इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम। मैलअलाइन्ड टूथ और क्राउडेड टीथ हो सकते हैं, पुअरली बैलेंस्ड डाइट। Now systemic diseases also leads to periodontal disease like diabetes, जो जिनमें होती है diabetic patient उनमें periodontal disease के रिस्क बहुत हाई होते हैं। Now certain drugs which leads to xerostomia. Xerostomia is what? Lack of saliva, मतलब बहुत कम थूक निकलेगा। जो सलाइवा होता है वो क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लश आउट करता है वो, तो जो हमारा सलाइवा होता है इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो हमारे सलाइवा के सिक्रीशन को कम कर देता है। ये कुछ सिस्टमिक डिजीज, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर पेशेंट्स में सलाइवा कम सिक्रीट होता है, तो उन पेशेंट्स में पेरियोडोंटल जिंजाइवल डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? लाइक रेड पफी गम्स आपको दिखेंगे, गम में टेंडरनेस होगी, ऐसे आपको पेन फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छुओगे या खाना खाओगे तो पेन फील होगा। समटाइम्स क्या होता है पेशेंट कंप्लेन करता है सुबह उठते हैं तो पूरा जबड़ा दर्द करता है, तो दीज आर द इनिशियल साइंस। आप वो पेरियोडोंटाइटिस का बहुत इनिशियल साइन होता है, यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। नाउ गम दैट ब्लीड ड्यूरिंग ब्रशिंग, परसिस्टेंट बैड ब्रेथ, शिफ्टेड और लूजन टीथ, आपका टूथ अचानक से आपको लग रहा है कोई टूथ अचानक से थोड़ा ज्यादा हिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अराउंड पॉकेट बन गया होगा, यू नीड टू विजिट। एंड ये सारे इनिशियल आपका बहुत जल्दी ये चीजें ठीक हो जाती हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैनिक मोड में नहीं आना है, ओ माय गॉड आई विल लूज माय टीथ, ऐसा नहीं है। आपको विजिट करोगे यू विल डेफिनेटली हैव सम ऑप्शन। नाउ पस भी हो जाता है किसी किसी को, दैट इज आल्सो वेरी यू नीड टू टेक केयर कि अगर किसी लोकलाइज्ड पस की फॉर्मेशन हो रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, यू नीड टू विजिट।
नाउ डिजीजेस चाइल्डहुड में लाइक केरीज हो जाते हैं बच्चों को, माल ऑक्लूजन होते हैं, लाइक यू कैन सी हियर क्रूकेड टूथ है, आगे निकले हुए दांत है। माउथ ब्रीदिंग की हैबिट अगर होती है, तो अगर आप नोज से बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, मुंह से कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो टूथ होते हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आएगी क्योंकि हवा जा रहा है यहाँ से, थूक का जो लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टूथ पे वो सूख जाता है, तो सूखेगा तो ऑब्वियसली वहां पे खाना जो फंसेगा तो वो फ्लश आउट नहीं होगा, तो वहां पे केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जनरली फिंगर और थंब सकिंग की हैबिट जिन बच्चों को होती है, तो वो दांत बाहर आ जाते हैं, और वैसे बच्चों में माउथ ब्रीदिंग की हैबिट, तो ये आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से तुरंत करेक्शन कराना होता है, क्योंकि अगर आप यहीं पे करेक्ट कराते हो तो बच्चा माउथ ब्रीदर से नेजल ब्रीदर, नॉर्मल नेजल ब्रीदर हो जाता है। नाउ थंब सकिंग इज एक्चुअली अ बैड हैबिट, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये एक्चुअली पेशेंट का नॉर्मल जो उसकी टेंडेंसी होती है, ये 18 मंथ तक अगर बच्चा कर रहा है ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा ने मुंह में उंगली डाला यू नीड टू पैनिक करे ये तो थंब सकर है, एक्चुअली नहीं, ये नॉर्मल हैबिट होती है 18 मंथ तक, यानी 1.5 साल तक के बच्चों में ये नॉर्मल होता है। उसके बाद अगर बच्चा कर रहा है, इनफैक्ट 2 साल तक भी आप इसको नॉर्मल मानिए, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर बच्चा मुंह में उंगली डाल के बैठा हुआ है, तो इट्स अ वार्निंग साइन फॉर यू, you need to check on it, maybe if you are not able to handle, क्योंकि sometimes क्या करती है मदर उस पे बैंडेड जैसा कुछ लगा देती हैं, या बच्चे को कुछ कपड़ा वपड़ा बांध देते, तो वैसे ही हैबिट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 1.5 साल तक बच्चा ऐसे करता है तो हो सकता है वो हैबिट कंटिन्यू कर जाती है, तो इसमें लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहा है, तो आपके पास वेरियस अदर प्रोस्थेटिक ऑप्शंस होते हैं जो आपको एक डॉक्टर एडवाइस करता है, उस पे कैप लगा सकता है, सम केमिकल लग सकती हैं, तो दैट इज नॉट अ हार्मफुल, बट हाँ यू शुड डेफिनेटली सीक एडवाइस, आपको वो डेफिनेटली लेना चाहिए। फिर हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस, दिस इज समथिंग व्हिच द डेंटिस्ट गिव यू टू ब्रेक द हैबिट। नाउ डिजीजेस कौन कौन से और डिजीजेस हो सकते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज केरीज एंड पेरियोडोंटल डिजीज व्हिच आई हैव डिस्कस। अगर आपके यहाँ जो बड़े बूढ़े हैं वो पूरा अपना दांत लूज कर गए हैं, तो उसको इंटेंशन उनको डेफिनेटली, अगर आप वो पूरा, आप खुद सोचो आपके पास दांत ही नहीं है, आप खाओगे क्या, खाओगे नहीं तो अपना हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाओगे, डेफिनेटली दे नीड टू गो फॉर डेंचर्स, तो आपको वो भी देखना होता है। फिर फ्रिक्वेंटली अगर अल्सर्स हो रहे हैं, अगर आपको फ्रिक्वेंटली मुंह में अल्सर हो रहे हैं, दैट इज अ वार्निंग साइन फॉर यू। अगर कोई और अगर सिस्टमिक डिजीज नहीं है ब्लड का, तो डेफिनेटली इट्स अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी की वजह से होता है। समटाइम्स इट इज आल्सो लिंक्ड विद सम सिस्टमिक डिजीजेस, लेकिन दैट इज अगेन अ वास्ट एकेडमिक थिंग, तो उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, बट अगर फ्रिक्वेंटली आपको अल्सर्स हो रहे हैं तो यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। समटाइम्स इट इज mostly due to vitamin B complex का deficiency, but if at all it is related to some other diseases, वो आपको find out करवा लेंगे। Like अगर patches में हो रहे हैं, हो रहा है, फिर जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा है, लाइक जनरली क्या होता है 5-10 दिन में आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते हो ठीक हो जाता है, बट इन सर्टेन केसेस लाइक कैंसर अगर है तो उनमें अल्सर्स ठीक ही नहीं होते, एड्स के पेशेंट में अल्सर्स ठीक ही नहीं होते, तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड, मतलब आपको अगर इनिशियल है तो इसी में दिखा लो तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन गोइंग ऑन क्या क्या चलो चल रहा है। मोस्टली फीमेल्स की आदत होती है जब तक वो पेन सहती रहती हैं जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए, तो मेरे कहने का मतलब बस मैं वही कह रही हूँ कि प्लीज बड़ा होने का वेट मत करिए, थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है तो प्लीज दिखा लीजिए। देन स्टेनिंग ऑफ टीथ, मोस्टली चाय कॉफी अगर पी रहे हो तो ये तो नॉर्मल है, फिर भी मैं इसको नॉर्मल मानती हूँ क्योंकि मैं डेली टोबैको च्यूअर्स को देखती हूँ जिनके दांत तो कलर दिखता ही नहीं है, तो खैर आप लोग के लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ अस डोंट डू दिस, तो इट्स नॉट फॉर अस, बट यस स्टेनिंग ऑफ टीथ इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। चाय कॉफी के स्टेन्स भी लगते हैं, समटाइम्स फ्लोराइड के भी स्टेन होते हैं, लाइक द वाटर वी ड्रिंक उसमें अगर फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होता है तो आपको व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, वो भी क्योरेबल होता है ब्लीचिंग के थ्रू, खुद का भी ब्लीचिंग होता है, लाइक यू कैन ऑल्सो गो फॉर, वो आपको डेंटिस्ट ऑप्शन देता है, कुछ ट्रेस प्रोवाइड करता है, या फिर आप डेंटल क्लिनिक में ही 1 सिटिंग या 2 सिटिंग में अपने खुद को स्टेन फ्री कर सकते हो। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, मेजर हमारा जो गोल है वो अब आ रहा है कि मेजर जो हमारा कंसर्न है, हाउ वी हैव टू प्रिवेंट इट, लाइक वी हैव टू रिड्यूस द शुगर इनटेक। अब शुगर इनटेक का मतलब ये नहीं है कि आप चाय कॉफी भी पीना छोड़ दोगे, रिड्यूस का मतलब ये है कि अननेसेसरी जो हम लोग मंचिंग करते हैं शाम को, चलो थोड़ा सा केक खा लो या कुछ मीठा, ऐसे ही हम लोग मंच ऑन करते हैं, गुलाब जामुन ऑल टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मंचिंग की हैबिट चिल्ड्रन में होती है, तो यू नीड टू कंट्रोल इट अ बिट। अब ये नहीं कह रही कि उनका टॉफी चॉकलेट ही बंद करा दो आप, बट यस यू नीड टू हैव अ लुक कि हाँ कितना खा रहा है आपका बच्चा,
इट्स लाइक एक चॉकलेट तक ठीक है, अब 4-5 खा रहा है, यू नीड टू चेक इट, हाँ तुरंत आप ब्रशिंग कराओ, यू नीड दैट डज नॉट हैव टू स्टिक ऑन द टीथ. Now brushing twice a day, as I said, flossing once daily. Now use of mouthwashes. These are actually very important and necessary things. Now healthy snacking habits जिनमें फाइबर्स ज्यादा हो. फाइबर्स क्या करता है, सेल्फ क्लीनिंग हैबिट की वजह, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑलरेडी दांत को क्लीन करता है. लाइक इफ यू रिमेम्बर, लाइक शुगर केन, अब तो खैर सब लोग जूस पीते हैं, अगर आप गन्ना खाओगे तो उसमें जो वो गन्ने का वो जो छिलका होता है उसकी वजह से आपके दांत खुद ब खुद क्लीन होते हैं. तो गन्ना का जूस चाहे जितना भी स्वीट हो उससे केरीज नहीं होगा अगर आप गन्ने को डायरेक्ट च्यू करके खा रहे हो. बट क्योंकि अब हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं तो बिकॉज क्योंकि वो बहुत स्वीट होता है तो यू नीड टू चेक ऑन इट, यू नीड टू डू माउथ वॉश, या फिर कम से कम सादे पानी से ही कुल्ला कर लो, है ना, यू व्हेन यू ड्रिंक ऑल दिस शुगरी ड्रिंक्स. नाउ प्रॉपर ब्रशिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक सम मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज जस्ट लाइक रब करते हैं 2 सेकंड में, जल्दी जल्दी जल्दी. लाइक ब्रशिंग को तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग लिया जाता है, जबकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है. आई कांट से कि आप में से कितने लोग 5 to 7 मिनट्स ऑफ ब्रशिंग करते होंगे. मैं किसी और को क्यों बोलूं, आई डू 3 मिनट्स. तो इट्स लाइक थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है. दैट इज द रीजन वी इनकॉर्पोरेट माउथ वॉशेस, फ्लॉसिंग, क्योंकि कई चीजें छूटेंगी ही छूटेंगी. तो अगर कुछ छूट रहा है तो वी नीड टू प्रिवेंटिव मेजर्स को डबल ट्रिपल करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा खाने का हैबिट ही अब थोड़ा सा अदर साइड जा चुका है. नाउ हाउ डू वी प्रिवेंट जिंजिवाइटिस, लाइक गम्स के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं. मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन विच इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ द टीथ. अब क्लीनिंग ऑफ द टूथ क्या हम सोचते हैं कि चलो अब मैंने तो ब्रश इंकॉर्पोरेट कर लिया, मैं फ्लॉसिंग भी कर रहा हूँ, माउथ वॉश भी कर रहा हूँ, अब तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली इट इज एडवाइजेबल कि आप 6 मंथ्स में एक डेंटल चेकअप तो ले ही लो. जस्ट हैव अ लुक, क्योंकि कोने में क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता है. अगर कुछ छूटा हुआ है तो 6 मंथ्स इज अ वेरी गुड अमाउंट, एम्पल ऑफ टाइम, जिसमें अगर इनिशियल कुछ भी है तो वो डेंटिस्ट रिकॉग्नाइज करके उसको वहीं पे स्टॉप करवाएगा. एटलीस्ट यू विल नो. 6 मंथ्स अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट अ ईयर यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट, और उसके बाद थरो क्लीनिंग आपको करानी ही चाहिए. नहीं, इंटरप्शन ऑफ बैड हैबिट्स, लाइक अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो बिल्कुल आप उसको वहीं स्टॉप करो. पान बीड़ी गुटखा भी स्टॉप करो. एंड इट इज नॉट कि आप में नहीं है, मैं समझती हूँ मोस्ट ऑफ अस आर फीमेल्स, दे डोंट. बट अगर आप अपने घर में किसी और को भी देख रहे हो तो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस कि इनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम चाय, जो दूध वाला आता है, जो सब्जी बेचने आता है, वो लोग के पास इंटरनेट का एक्सेस इतना ज्यादा नहीं होता भी है तो वो कुछ और ही देख रहे होते हो, तो उनको ओरल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ चीज होती है. तो अगर हम उन्हें बताएंगे कैंसर होगा, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, अरे मैडम हमें पता ही नहीं था वरना हम छोड़ देते बहुत पहले. तो हम लोग, तो क्या होता है ना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए यू डोंट हैव टू डू मच. अगर आप अपनी नॉलेज भी शेयर करते हो ना, या किसी को कुछ गड़बड़ देख रहे हो, बुरी आदतें देख रहे हो, आप उसको टोको, प्यार से ही टोको, क्योंकि आजकल तो कोई किसी की सुनता नहीं है. बट एटलीस्ट लेट देम नो. उसके बाद तो उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या चूज कर रहे हैं अपने लिए. So we need to interrupt the bad habits. Now, periodontitis, obviously scaling, once a year scaling is the must. Maintenance of oral hygiene, then flap operation, bone grafting are like बहुत ना आगे वाला चीज हो जाता है. जब आप अपने आप को नहीं ध्यान देते हो, आपका टूथ एकदम गॉन केस हो जाता है, then you know, to preserve it we have to go for flap operation and bone grafting. Now अब बहुत सारे measures आ गए, like अगर if you lose a tooth then there are measures to protect और मतलब restore it. अगर indenturism है तो आपको dentures मिल जाते हैं. You can see here a partial denture. It's not, you don't have to wait कि आपके पूरे दांत निकल जाए तभी आपको denture मिलेगा, ऐसा नहीं है. There are partial dentures also and which are very good in maintaining hygiene too. Now removable partial dentures होते हैं, fixed partial dentures होते हैं. Fixed में क्या होते हैं? It's like they have got caps. यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, डोंट, जैसे ये है रिमूवेबल है, ये दांत से निकल भी जाता है. ये होता है फिक्स्ड होता है, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है. देन वी गो फॉर कंप्लीट डेंचर. इट्स अ टाइप ऑफ कंप्लीट डेंचर. इम्प्लांट, वो आजकल क्या हो रहा है, जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा होता है दे गो फॉर इम्प्लांट. जो इम्प्लांट क्या होता है, वो एक स्क्रू की तरह होता है, जैसे दीवार पे कील डाली जाती है वैसे एक छोटा सा, नाउ आई एम यूजिंग अ वेरी हार्श वर्ड कील, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक अ शेप ऑफ अ पिन. तो पिन की तरह दिखता है वो, तो वो एक पिन की तरह होता है, इसके ऊपर टूथ को रेस्टोर कर दिया जाता है. तो ये भी एक मेजर्स है, ठीक है.
फिर आप प्रोस्थेटिक जान सकते हो, ऑब्ट्यूरेटर जा सकता है। ऑब्ट्यूरेटर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चों को क्लेफ्ट होता है लिप में, पैलेट में, तो उनका खाना नाक तक पहुंच जाता है, तो उनमें ऑब्ट्यूरेटर दिया जाता है। एक शील्ड होती है नाक की और ओरल कैविटी के बीच में, जिससे वो बच्चा मुंह में जो भी खाएगा पेट में ही जाएगा, नाक में नहीं जाएगा। तो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का भी मैनेजमेंट भी आता है। नाउ कैंसर एज आई हैव सेड, Just 1 second, Yukti. यस मैम। We just left with last 2 minutes with the session. हाँ मैम, आई वाइंड We'll अप get over. लाइक Hanji, Hanji. It'll तो close. कैंसर एज आई सेड, हाँ मैम आई डू। कैंसर एज आई सेड, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब है। अल्कोहल है, वो भी हैबिट में से आपको हटानी पड़ेगी। बीटल नचुएट लाइक सुपारी नहीं है ना। फिर ये सब मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, लाइक अल्सर है, इरिटेशन इन द माउथ है, डिफिकल्टी इन च्यूइंग है, ये सारे साइन एंड सिम्टम भी है। नाउ प्रॉपर हाइजीन में यही आपको रेगुलरली विजिट ही करना होता है, ताकि आप जिंजाइवल और पेरियोडोंटल डिजीज को जितना हो सके इनिशियल लेवल पे ही आप उसको रिकॉग्नाइज करके डेंटिस्ट से उसके लिए हेल्प ले सके। So it is said a lifetime of proper hygiene improves your quality of life. Definitely it improves your overall health. So it plays a major role. Obviously aesthetic पे तो रोल है ही, आप सुंदर दिखोगे ही और अच्छे से खाओगे पियोगे तो हेल्दी भी दिखोगे। Now there are tooth brushing technique. इसमें मैं बस 1 मिनट लूंगी। आप जैसे कि फोटो में देख सकते हो, most of us do like rubbing like this. It is 45 डिग्री पे आप अपने ब्रश को एंगल देके you have to do a vertical motion. That is and vertical and rolling. लाइक वर्टिकल करोगे एंड रोल करोगे, ऐसे ऐसे घिसना नहीं होता। ये आप इसके काफी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू देम आल्सो। तो ये मेरा एक मेजर कंसर्न था कि मैं आप लोग को ये बताऊं। नाउ वी शुड चूज द सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश। आपके ब्रश के साइड में लिखा रहता है सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, तो आपको सॉफ्ट पे जाना चाहिए। पेस्ट भी आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आप सेंसोडाइन, आप नॉर्मल हेल्दी पीपल को जिनको सेंसिटिविटी है ही नहीं, आप उसमें सेंसोडाइन लेके कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल इतने ऑप्शन है मार्केट में, तो उस हिसाब से जाना चाहिए। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अ नॉर्मल कोलगेट और पेप्सोडेंट विल डू। सो दिस वाज ऑल। सो आई होप आज के नहीं, thank you so much. Thank you so much, Yukti. I think any second this session is going to get over for everyone. Just left with last 30 seconds, but must say it was a wonderful session which we had with you. I'm going to put this on our YouTube channel also, so that it will benefit many others as well. And I think there were a few questions people were asking in the chat, but you have already answered to those in your session. Mouth wash के लिए पूछ रहे थे, वो आपने कहा डेली। फ्लॉस के लिए पूछ रहे थे, वो आपने कहा डेली। तो नहीं, thank you so much for such a wonderful session, and it was lovely having you with us. Thank you everyone for joining us today in our session, Shashakta, and see you all soon. Thank you very much, and Jai Hind. Bye.